friends, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Mr. SM Azad. In last video we have discussed about home and insert button in Microsoft Word. What is the function of these buttons in Microsoft Word? So in this video I have discussed about design and page layout button, how to work these two buttons in Microsoft Word and what is the function of in these two buttons in Microsoft Word. So I want to request you to all my friends, please, I am a new on YouTube, so please subscribe my channels Mr. SM Azad. Watch my videos, like my videos, share my videos, and give any kind of comments on comment section. So please, I want to request you again, subscribe my channels, watch my videos, share my videos, like and give comments. So no more waste time, and let's go to the computer screen and open the Word, Microsoft Word, and start the video. جی دوستو، تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلی ویڈیو میں ہوم اینڈ انسرٹ بٹن کے بارے میں نے آپ سے ڈسکشن کی تھی اور بتایا تھا کہ اس کے کیا کیا فنکشنز ہیں. آج اس ویڈیو میں آپ کو آئی وانٹ ٹو ٹیل یو اباؤٹ ڈیزائن اینڈ پیج لے آؤٹ بٹن، کہ یہ دو بٹن کیسے کام کرتے ہیں اور ان کا کیا فنکشن ہے. تو دوستو، سب سے پہلے جو ہے ہمیں ایک پیراگراف لکھنا پڑے گا. میں نے ایک پیراگراف کاپی کیا ہوا تھا، وہ میں اس میں پیسٹ کر دیتا ہوں. اب آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ دو بٹن اس وقت تک کام کریں گے، اس وقت تک ورک کریں گے جب تک آپ ورک نہیں کریں گے، بلکہ یہ دو بٹن اس وقت تک ورک نہیں کریں گے جب تک آپ اس پیراگراف کو سلیکٹ نہیں کریں گے. تو سلیکٹ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ یا تو آپ ماؤس کا یوز کرتے ہوئے آپ اس پیراگراف کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، یا پھر کنٹرول اے کا بٹن پریس کریں گے تو یہ پیراگراف سلیکٹ ہو جائے گا. سلیکٹ کرنے کے بعد آئی ایم گوئنگ ٹو ڈیزائن بٹن. اب یہ دیکھ لیں کہ ڈفرینٹ کائنڈ آف ڈیزائنس اویلیبل ان ڈیزائن بٹن. مختلف قسم کے ڈیزائن ہیں، آپ کوئی سا بھی اس میں سے یوز کر سکتے ہیں جو آپ کو بہتر لگے. اس کے بعد نیکسٹ ہم چلتے ہیں فونٹ کی طرف. اب ہم چاہتے ہیں کہ اب یہاں کافی سارے فونٹس موجود ہیں، کوئی سا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو بہتر لگے. اس کے بعد آگے نیکسٹ ہے پیراگراف سپیسنگ کا. اب یہ پیراگراف سپیسنگ میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ یہ ایک لائن اور دوسری لائن اور تیسری لائن کے درمیان کا فاصلہ ہوتا ہے، اسے ہم پیراگراف سپیسنگ کہتے ہیں. اب آپ یہ اس وقت جو ہے وہ پیراگراف زیرو سپیسنگ پہ موجود ہے. اب ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں، یہ دیکھیں کہ پیراگراف کے اندر جو ہے لائنوں کے اندر فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے. تو یہاں سے بھی جو مرضی ہے آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگلا آپشن ہے ڈیزائن کا. تو یہ بیسیکلی یہ جب 3D کا ڈیزائن بنتا ہے تو اس میں آتے ہیں، لیکن اس میں آتے ہیں، یہ ایک ڈاکومنٹس لکھنے میں نہیں ہوتے. اس کے بعد آ جاتا ہے واٹر مارک. دوستو، اب واٹر مارک کیا چیز ہے؟ واٹر مارک وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کا ایک پیپر ہے، تو پیپر کے اوپر آپ کی کمپنی کا نیم جو ہے وہ نیچے پیپر کے درمیان میں ٹائپ ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ اپنے ڈاکومنٹس لکھ سکتے ہیں. تو میں ایک یوز کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. یہ میں نے ایک لکھ دیا، یہ دیکھیں کانفیڈینشیل لکھا ہوا آ رہا ہے، لیکن یہاں کمپنی کا نام نہیں ہے. تو میں یہاں جو ہے
ये कस्टमाइज, ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मिस्टर SM आज़ाद। मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ और यहाँ से मैं ये टाइम्स न्यू रोमन लिख देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। ये देख रहे हैं वाटर मार्क आ गया, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम आ गया है। अब आप जहाँ जहाँ जो चीज़ भी लिखेंगे, जब आप इस पेपर को प्रिंट आउट करेंगे तो उसमें नीचे जो है आपका वाटर मार्क यानी आपकी कंपनी का नाम जो भी होगा वो दिखाई देगा। उसके बाद है आगे पेज लेआउट, पेज कलर है। पेज, अब दोस्तों के आप चाहते हैं कि पूरे पेज के ऊपर कोई सा भी कलर आ जाए, तो ये देख रहे हैं ये कलर आ गया है। उस पेज को आप कोई सा भी कलर देना चाहें तो कलर दे सकते हैं। अब आप इसको चाहते हैं कि ये आप जैसे कि वाटर मार्क के अंदर हम दोबारा एडिट में सेक्शन में चलते हैं और इसको हम दे देते हैं कलर, तो कलर हम देते हैं ब्लैक ताकि नज़र आना चाहिए। ये देखें, ये दोस्तों नज़र आ रहा है। अब आप चाहते हैं कि नेक्स्ट चलते हैं पेज बॉर्डर की तरफ। यहाँ पे काफ़ी सारे बॉर्डर्स मौजूद हैं, आप कोई सा भी बॉर्डर देना चाहें वो आप दे सकते हैं ताकि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लिखेंगे वो इस बॉर्डर के अंदर ही रहेगा। और आपका ये देख लें, ये भी आपको नज़र आ रहा है। अब थोड़ा सा एक और चीज़ रह गई है वाटर मार्क के अंदर, आप इसको नहीं, ओके ठीक है, ओके ये आ सकता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं पेज लेआउट बटन की तरफ। तो दोस्तों इसमें ये देख लें कि मार्जिन किया हुआ है, आप एक इसको सिलेक्ट करें। ये होता है बेसिकली पेज के हवाले से कि पेज कौन सा रखना चाहते हैं, वाइड। ये देखें, ये मकसद जो पेज का मार्जिन आप देंगे उसी मार्जिन के तहत ये पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। तो हम इसको ये यहाँ पे सारे साइन भी नज़र आ रहे हैं, जैसे मर्ज़ी है आप कर सकते हैं। ये नॉर्मल में आ गया। उसके बाद आ जाते हैं ओरिएंटेशन। अब ये ओरिएंटेशन बेसिकली ये होता है दोस्तों कि आप इस पेज को पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं या लैंडस्केप में देखना चाहते हैं। तो ये इस वक्त जो पेज मौजूद है वो है पोर्ट्रेट पे। अब हम इसको लैंडस्केप में लेके चलते हैं। ये देख रहे हैं ये लैंडस्केप में चला गया है। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद आगे है साइज़। तो साइज़ में डिफरेंट किस्म के साइज़ हैं, लेटर साइज है, लीगल साइज़ है, स्टेटमेंट है, एग्जैक्टिव है, A3 A4 A5, जो भी इसमें से आप रखना चाहते हैं तो वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली जो है वो हमेशा नॉर्मली जो यूज़ होता है वो A4 साइज़ यूज़ होता है। इस पे ही आप डॉक्यूमेंट्स भी लिखे जाते हैं, कोई एप्लीकेशन लिखनी होती है, कोई लीगली तौर पर इसी में होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अगले सेक्शन में कि 1 2 3 4 1 2 3 4। तो आप ये देख रहे हैं कि कैसे चला गया कॉलम, यानी कि ये कॉलम की साइज़ है। अब कॉलम क्यों होता है बेसिकली कि इसमें ऐसे इस वजह से होता है कि जो न्यूज़ वाले होते हैं, जो उसके ऊपर न्यूज़ लिखते हैं, ये बेसिकली वहाँ उसकी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है कंटिन्यूएसी। ये होता है कि बेसिकली जो आप नंबरिंग के दे के एक पैराग्राफ एक लाइन एक नंबर पे आगे दूसरी 2 3, तो इस तरह नंबरिंग की सूरत में जो पैराग्राफ लिखना हो वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद है
उसके बाद पेज लेआउट में तकरीबन सारी चीज़ें यही हैं दोस्तों। और ये देखें, ये होता है बेसिकली लेफ़्ट स्पेस लिखने के लिए कि आपको पहली लाइन के अंदर कितना स्पेस देना चाहते हैं। जितना देना चाहें आप वहीं से लिखना शुरू होगा, ये देख लें, वहीं से लिखना शुरू होगा। उसके बाद आप यहाँ से देना चाहते हैं तो ये राइट साइड से आगे वहीं तक लिखा जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। ये मैं कुछ ऐसे कर दूँ, ये देखें वहीं चला गया। अब ये देख रहे हैं, ये स्पेस यहाँ से भी आप एक लाइन से दूसरी लाइन में आप ये स्पेस भी दे सकते हैं, और यहाँ से भी जो है ये फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक कि हाउ टू यूज़ डिज़ाइन एंड पेज लेआउट बटन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कि आप एक इस दो बटन को इस्तेमाल करते हुए एक पैराग्राफ को अच्छे तरीके से कैसे लिखकर पेश कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।